परीक्षा में आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल के श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल के कक्षा 12वीं के 67 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। 10 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। 29 छात्रों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। 38 छात्रों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किया। वहीं 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 63 तथा द्वितीय श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। वैष्णवी राजपूत ने 94% अंक प्राप्त किया। वहीं जागृति शर्मा 93.40% अंक प्राप्त किए। शौर्य ओझा ने 93.20% अंक प्राप्त किए। कॉमर्स में जेना भूपकिया ने 94% अंक प्राप्त किए। वहीं प्राक्षी जैन ने 92% अंक प्राप्त किए। सौम्य जैन ने 91.80% अंक प्राप्त किए तथा शेफाली ओझा ने 91.70% अंक प्राप्त किए। आइए आइए आइए, बिल्कुल ये पापा के लिए वेल डन। अरे सॉरी फिर कोई बात नहीं, वेल डन, कांग्रेट्स। कांग्रेचुलेशन। कमी भी नहीं है, कमी तो भी नहीं। Myself Shefali Oza, and I was able to score 91.8% in 12th boards, all thanks to my teachers and my dear parents who were always there with me to support me throughout this whole journey. Thank you so much. My name is Shaurya Oza and I scored 93.2% in CBSE class 12th board from science stream. I am thankful to the faculties of this school for supporting me throughout my journey, and obviously I am thankful to principal sir as well as my parents for supporting me throughout this beautiful journey, and I will never forget the time I spent in this school. Thank you sir. My name is Soumya Jain. My name is Soumya Jain. I am from Khajrod. I have scored 91.8% in CBSE 12 board 2024. It's all through the help of my teachers and parents. So thank you. Vaishnavi Rajput. I scored 94% in class 12th board examination, and I am thankful to my parents and teachers for always supporting me to give my best. My name is Prakshi Jain, and I am 12th. I have scored 92%. I thank my parents and my teachers for their hard work and for their support, and as said, my hard work also paid. Thank you. Yeah, and I scored 94% in 12th CBSE board exams. The teachers were so supportive. My hard work also paid off, and you should always think positive because it is the only way you can achieve what you want. So yes, thank you. Sharma, and I scored 93.4% in CBSE board exam, and I'm thankful of teachers and my parents for always supporting me and kept motivating me all through the 10वीं कक्षा के सभी 106 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से 6 छात्रों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 25 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 60 छात्रों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं 70 छात्रों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी मेहनत का परचम लहराया। आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल के प्राचार्य सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 96 है तथा द्वितीय श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 रही है। ये भी बताया कि कक्षा 10वीं की परीक्षा में यति नेमा ने 96.80% अंकों के साथ विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद देवाशीष अग्रवाल ने 96.40% अंक प्राप्त किए हैं। अभिनव त्रिपाठी ने 95.40% अंक प्राप्त किए हैं। प्रथम पवार ने 95.40% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं दृष्टिपाल ने 95.20% तथा अरिंजय आचार्य ने 95% अंक प्राप्त कर अपनी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा का परिचय दिया है।
सभी विद्यार्थियों को दशमेश नेटवर्क की ओर से भी ढेर सारी बधाइयाँ। सर इधर है। थैंक यू सो मच सर। My name is Drishti Pal and I scored 95.2% in class 10 CBSE boards, and I'm thankful to my parents for their support and teachers for all the efforts that they gave in my journey. So thank you. My name is Abhinav Tripathi and I have scored 95.4% in CBSE class 10 board examination, and because of the support of my parents and the teachers and because of my hard work I have achieved this. I have scored 96.4% in class 10th board examination with the support of my parents, teacher and the principal sir. नमस्कार, मैं सभी बच्चों को उनकी सफलता पर हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे और जीवन में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इन सब बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल नागदा का परचम लहराने के लिए और उसको ऊंचा रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मामला हितेश और उसके परिजनों के साथ मारपीट का 3 दिन में ठोस कार्यवाही न होने पर हिंदू समाज आंदोलन की राह पर होगा। हिंदू जागरण मंच और गुर्जर समाज के युवाओं ने मंगलवार की शाम को पुलिस थाने में सांकेतिक प्रदर्शन कर 3 दिन में कार्यवाही न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही का आश्वासन उपस्थित जनों को दिया। गुर्जर समाज द्वारा मंगलवार को मामले को लेकर वृहद बैठक आहूत की जा रही है। उसमें जो प्रकरण हुआ कि जरा सी बात को सामान्य बात थी, तो आपकी बात से भी हो सकती थी कि इन बदमाशों में एक व्यवसायी जो अपने जनसेवा में कार्य थे स्टोर में, मेडिकल स्टोर में, तो उस पर कोई प्रकरण नहीं है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सामान्य व्यक्ति पे एक उसके साथ ऐसी मारपीट करी और पंचों से मारा और महिला बचाने आई है, उसकी महिलाओं के साथ मारपीट हुई। हमारी मारपीट हुई है, मात्र 3 जने नहीं थे, उसमें ज़्यादा जने थे, उसमें नाम अन्य नाम नहीं लिखे गए। दूसरा विषय कि जब एक राजा को पकड़ के लाए हैं और उसको पकड़ के लाए और फरियादी अगर थाने में रिपोर्ट करने आया है तो उसके साथ भी वो घुर्रा रिया और अपशब्द वहाँ से अंदर से बोलते हैं, तो उसके हौसले इतने बुलंद हैं। इसका अधिकांश पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है आपराधिक है और उसके बाद में इनको जिला बदर होना चाहिए। फिरोज आजम के रिश्तेदार हैं, लालू आजम इसका बेटा है, अली दारू का व्यवसाय करता है। हम बार बार आपको बोलते हैं, अवगत कराया कि साहब को भी कि ये दारू का धंधा करता है और नागदा में करता है, फल फूल रहे हैं और गुंडागिर्दी कर रहे हैं और आम जनता इनसे त्रस्त है, कोई लड़ नहीं सकती है। और उसके बाद में इस तरह की मारपीट होती है, पूरा समाज जन उसके साथ में आता है, रात को 2 बजे तक रहता है। बाकी हमको संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज परिवार के सभी लोग आए हैं और समाज के लोग एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में आपसे मिलना चाह रहे थे कि हम यह चाहते हैं कि अगर सख्त इनके धारा बढ़ाई जाए। अभी आईसीयू में भर्ती है, यहाँ पे पंच मारा, धारेदार हथियार से उसके यहाँ पे लगी, उसके ससुर के यहाँ पे पूरा पंच मारा गया, महिलाओं को बेल्ट से मारा गया। इतना होने के बाद में उसके साथ में कोई सख्ती नहीं हो रही है और एक जने को पकड़ के लाए। उसके हमारा कहना है कि इनके ऊपर जिला बदर 20-20 प्रकरण होने के बाद जिला बदर नहीं हो रहा है और 8 प्रकरण में जिला बदर हो गए।
और विधानसभा से फाइल ऊपर पड़ी हुई है। ये एक चिंता का विषय। इसका मतलब ये कि राजनीतिक संरक्षण में आपके माध्यम से उन्हें बचाया जा रहा है, ऐसे गुंडे बदमाश जिनके हौसले बुलंद है और वो हमारे समाज के साथ में निर्दोष लोगों के जरा सी बात में इस तरह के मारपीट करके दहशत का मतदान में इतना पुलिस फोर्स आया, सब कुछ हुआ, फ्लैग मार्च हुआ और उसके बाद में एक दिन पहले ही वो मार रहे हैं और माहौल बिगाड़ रहे हैं और आप ऐसे अपराधी तत्वों को सामान्य धारा में प्रकरण दर्ज कर रहे हैं। हमें ये बताया और अगर यहाँ से कोई मिला तो हम आगे जो भी होगा आंदोलन इसमें करेंगे। आप अपना विषय देखिए, ऐसा जो जांच आपने बताई थी, जो फरियादी ने जो बताई थी, उसके मुताबिक FIR हुई है। लेकिन हिंदू जागरण मंच के प्रांताध्यक्ष भेरूलाल टांक के नेतृत्व में मंगलवार की शाम को 5 बजे गुर्जर समाज जन CSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से मिले। उपस्थित जनों ने बताया कि जनसेवा अस्पताल के मेडिकल में कार्यरत हितेश गुर्जर 12 मई की रात्रि में बाइक से जा रहा था कि इसी दौरान राजा आजम नाम के युवक ने थूका, जिसके छींटे हितेश को लगने पर विरोध किया तो राजा ने अपने भाई अली आजम के साथ पंच से मारपीट की, जिसको उपचार के लिए जनसेवा की ICU में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लॉकअप में बंद किया। समाज के युवाओं ने कहा कि यदि 3 दिन में आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो हमको भी आरोपी बनना पड़ सकता है। पीड़ित के पिता ने रूंधे हुए कंठों से कहा कि जब सामान्य लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो संगठित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अन्यथा भविष्य में गंभीर परिणाम आ सकते हैं। बढ़ाई गई है वो अनुसंधान में बढ़ चुकी है और उसमें कार्रवाई उसके मुताबिक। इसके अलावा पुलिस ने अपनी तरफ से और गवाहों से पूछकर और अन्य साक्ष्य को एकत्र कर उसमें कुछ नाम और चिन्हित करे हैं, जिनके की नाम ये अनुसंधान का विषय है, इसको सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकता, गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में हम जो है इसको अनुसंधान में अच्छे से अच्छा अनुसंधान करके कार्रवाई करें। इसमें धाराएं जो आपका कहना सामान्य धारा, ये भी गलत आप मत सोचो। जो धाराएं प्राथमिक रूप से लगी थी वो उचित थी, लेकिन इसके बाद जो अनुसंधान में जो साक्ष्य आई है उसके आधार पर धारा बढ़ाई जाए। और धारा को ऐसी दहशत फैलाई गई है समाज के अंदर इनके, और वो अंदर लॉकअप में से दादागिरी कर रहा है। आप तो उसका जुलूस निकाल के कम से कम समाज पे ये संदेश जाए कि ऐसे जुलूस, देखिए जुलूस नहीं, हमें जो अनुसंधान में जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए हमें आरोपी को अगर मौके पे ले जाके कोई जानकारी लेना पड़ेगी वो भी हम करेंगे। जुलूस वगैरह का तो हम आपको डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जो कार्रवाई है उनका इतनी दहशत है। एक मिनट के लिए पूरे परिवार की प्रश्न, आप जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है, आपराधिक लिप्त है, शराब बेच रहा है, समाज में कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों का जुलूस निकलना चाहिए। जिसके सुनो जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए भी हमारी तरफ से प्रतिवेदन हमने भेज चुके हैं। उसमें ऊपर अभी कार्रवाई लंबित है, निश्चित है निकट भविष्य में जो भी उचित कार्रवाई। पर सर एक ये चीज सोचो कि उसके परिवार में वो अकेला एक ऐसा आदमी है, मैं कह रहा हूँ पूरी गुर्जर समाज में इतना सज्जन आदमी है, उस आदमी के साथ आप एकदम से उतरते हो और मारपीट कर देते हो, तो ऐसे तो पूरे नागदा नगर में अब ये हो जाना चाहिए कि सिर्फ गुंडे ही घूमेंगे, घर परिवार के लोग सब घर में रहो, क्योंकि वो तो डायरेक्ट उतर के पंच मार रहे, चाकू मार रहे, वो आदमी उसके ड्यूटी जा रहा है। तो ये तो वाली बात होगी ना कि आपके बड़े जरा सी गाड़ी पे टकरा जाएगी तो क्योंकि हम तो दादा पहलवान है, हम तो आपको मारेंगे ही, सही वाली स्थिति में आ गया ना नागदा। तो नहीं तो सर उस आदमी के पास क्या था, उसको नीचे मार मार के सुला दिया इनने। वो हितेश जी के बारे में आप नगर में आप बच्चे से पूछ लो, वो आदमी सीधा अपने घर से जाता है, ड्यूटी जाता है। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति अगर व्यापारी है, कोई व्यवसायी है, कोई नौकरी वाला है, वो अपने घर से अपने बच्चों को लेकर निकल भी नहीं सकता गाड़ी पे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट चाकू मारेंगे उनको। चाकू आम आदमी की जेब में थोड़ी है सर, अगर इनकी जेब में है तो किसी के संरक्षण से ही तो इनकी जेब में आज तक चाकू है। संहिता के अंदर ये ऐसा काम कर रहे हैं तो यानी हमने मन मारा क्योंकि अगले दिन वोटिंग थी, हम नहीं चाहते थे कि पूरा माहौल बिगड़े, वरना पूर्व में इस नागदा नगर ने इतिहास देख रखा गुजरों का कि बस स्टैंड पे जो तांडव हुआ था, अगर उसको फिर भी दोहराना है तो उसके लिए भी गुजर समाज तैयार है, पूरा हिंदू समाज तैयार है। गुजर समाज को ही रोका हमने। अगर रात को 11 बजे किसी सीधे साधे आदमी को मार रहे हैं, वो प्रशासन पे भरोसा है, वो कार्रवाई करें। गुजर समाज को हमने ही रोका है सर। रात को 11 बजे उस आदमी को इतना सीधा आदमी है, रोड पे आएगा सर। मेरी बात, गुजर समाज रोड पे आएगा सर। अगर हम फरियादी हैं, हमें फरियादी ही रहना चाहिए।
हमें आरोपी बनने की जरूरत नहीं सर, आरोपी नहीं पर मजबूरी है। जिसने गलती करी उसको सजा के लिए हम बैठे ना यार। अरे तो हम सजा दिलाएंगे ना, हम अनुसंधान करेंगे। सर वो अंदर से आंख दिखा रहा है सर, वो थाने में हो गया आंख दिखा रहा है। 307 की कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। अरे भाई देखो जो विधिवत कार्रवाई है सब हम इनको बता चुके हैं। हमारे हिसाब से अनुसंधान में जो हमें डॉक्टर से क्वेरी वगैरह कराने के बाद हमारे जांचकर्ता जो टीआई साहब ने कार्रवाई कर चुके हैं। जिस बातों के लिए आप बोल रहे हैं 50% से ज्यादा समय तो होगा कि अभी भी अपने से वो गिरफ्तारी नहीं आई, ऐसा कार्रवाई हो जाएगी। गिरफ्तारी भी नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की। नहीं, गिरफ्तारी भी हो रही है, उसके लिए भी प्रयास हम आपकी ये चीज समझ रहे हैं। सुनो चुनाव में लगे थे, चुनाव में लगने के बाद भी अपन ने अपने तरफ से पूरे इसीलिए सर हम भी घूम रहे हैं सर। गुजर समाज को रोका जा रहा है, नहीं तो सर मिले 5 एक और निकालना पड़ेगा सर। इतना फिर सब इकट्ठा रोड पे आएंगे सर। इसलिए आश्वासन आप दे रहे हैं तो उसकी कार्रवाई हो जाएगा, कब तक कर देंगे। नाम है ना वो घूम रहे वहाँ पे। चलो ठीक है, मैं अभी महामहिम राज्यपाल महोदय की ड्यूटी में मेरे को जाना, उनको लेकर है ना, तो हो गया आपका। वहाँ महामहिम जा रहा है, मैंने तो इनसे बता दिया था। आपने बात कर ली, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं कार्रवाई भी कर रहा हूँ। अब इससे ज्यादा मैं देखो अनुसंधान के बीच सर अली आजम, फिरोज आजम, लालू आजम, इन सब के खिलाफ मिला के 50 से अधिक प्रकरण दर्ज होंगे सर। इनके मकान तोड़ने के अभी क्या आपने कुछ कार्रवाई करने का लिखा आपने क्या मकान? उसके लिए हमने नगर पालिका को हमारी तरफ से आज इन्होंने टीआई साहब ने प्रतिवेदन दिया है। इनके मकानों के बारे में जो विधिवत सम्मत कार्रवाई है वो सब कार्रवाई नगर पालिका निगम करेगी। उसके लिए इन्होंने नगर पालिका को उसकी जानकारी के लिए लिखा है। पूर्व में भी एक पत्र इन्होंने भेजा था, जानकारी आ गई है और अभी फिर से हम भेज रहे हैं, उसमें जो भी विधिवत कार्रवाई होगी सर कार्रवाई होनी चाहिए। अगले सर अगर आज अगर ऐसे सीधे आदमी को मारे बाद भी अगर इन पे व्यवस्थित कार्रवाई नहीं होना तो ये सोच लेना हर तीसरे दिन ऐसी वारदातें ये करेंगे, क्योंकि ये तो फ्री हो जाएंगे ना। इनके क्या है, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। बात सर मुसलमान हिंदू की नहीं कर रही है। तो अगर ऐसी कोई कार्रवाई करेगा तो उसको परिणाम सर हिंदू मुसलमान पे तो हम लाए नहीं अभी बात। अगर हिंदू मुसलमान का समाज की बात नहीं आती, समाज एक बार अनुसंधान तो हमारा आज काफी कुछ, आज सुबह से गिरफ्तारी कब हो जाएगी? गिरफ्तारी के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। आप 3 दिन में था, 3 दिन में गिरफ्तारी। अगर 3 दिन में नहीं करें तो ये फरियादी की जगह में आरोपी बनना पड़ेगा। बस इतनी बात। 8 से 10 आरोपी रोड पे आएंगे और इतने घूमेंगे खुले तो ये आपकी जवाबदारी नहीं। आपकी जवाबदारी समाज के हम जैसे सीधे लोग ऐसे मारे जा रहे हैं तो फिर दूसरों के साथ क्या और कब तक ऐसे जिएंगे? और मार खा के जीना है तो जियो सब। यदि अपन संगठित नहीं होंगे आज तो पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेगी, जो उचित धारा है वो नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगा काम? भाई हमारा तो किसी से कोई लेना ही देना नहीं था, हम तो ड्यूटी जा रहा था बेटा मेरा। और थूकने के बाद भी अपन तो सॉरी बोलते हैं। संस्कार यही है कि नहीं यार, सॉरी गलती हो गई तो कोई बात ही नहीं होती मेरे, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। इसका मतलब कि इनने मना किया होगा और उनने चढ़ गए। अब आप लोग देख लो अब क्या है अपने समाज की व्यवस्था और कैसे चलेगा। आप यहाँ थाने आए और आपने जो सीएसपी साहब से बात की तो क्या आपको क्या आश्वासन? तो हमको कल से ही बहुत अच्छा मिल रहा पुलिस की तरफ से। कल रात को भी थाने में दादा साहब आए, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया कि आज चुनाव हो जाने दो, उसके बाद में आपकी पूरी कंप्लीट कार्रवाई करूँगा। भाई साहब भी रात को ही रात भर थे तो वो उससे कोई हमको ऐतराज नहीं है। खूब सहयोग मिल रहा पुलिस का भी, भाई साहब का भी, समाज का भी। पर सहयोग ही सब कुछ नहीं है, उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए। उसका रिजल्ट कैसे आता है पुलिस की तरफ से, कैसा आप लोग मीडिया की तरफ से कैसा रिस्पांस आता है, ये सब चीज़ें। जिस बंदे की वजह से झगड़ा हुआ था वो 3 दिन से थाने में है और अगर कोई भी बंदा वहाँ पे जा रहा है तो उससे वो बहस कर रहा है, आंखें दिखा रहा है, उसके बाद कोई ना डर ना वर कुछ भी नहीं उसको, और उसी ने सारा पूरा ड्रामा रचा है। जो अंदर बैठा हुआ है अभी तक उसका रिमांड तक नहीं हुआ है। 3 दिन का आश्वासन दिया है प्रशासन ने हमें। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो गुजर समाज और हिंदू समाज खुद हम कार्रवाई कर लेंगे। हम इतने सक्षम हैं, हम सड़क पे क्या सब कर लेंगे, हम अच्छी तरह से कार्रवाई कर लेंगे। 3 दिन का आश्वासन दिया है, हम देखते हैं 3 दिन में।
पिछले 2 दिन पहले अप्रोच रोड पर हितेश गुजर नाम का व्यक्ति, हमारा छोटा भाई है, वो जनसेवा अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। तो आज हम परिवार से जो उसके ऊपर थूका गया, थूकने के बाद उसने जब बातचीत करी तो उसे चमका कर उसको मारा गया। उसको बचाने आए, उनके काका ससुर को भी मारा, उनके साले साहब को भी मारा। उसके बाद मारने के बाद और दादागिरी भी बताई उनने। उसके बाद प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। 3 दिन से हम इटारा का यहाँ सर्व समाज एकत्रित होकर CSP साहब TI साहब को अवगत कराया, तो उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेट दिया है। अगर नहीं होती है कार्रवाई उन पर तो बहुत जल्द सब समझ समाज और गुर्जर समाज पूरा रोड पर आकर अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। जय हिंद जय भारत। प्रतिनिधि मंडल 3 दिन पहले एक घटना को लेकर यहाँ पे मिला है, आपके द्वारा क्या अल्टीमेटम दिया गया है और पुलिस द्वारा कार्रवाई का क्या आश्वासन दिया गया है? विगत 2 दिन पूर्व जो हितेश जी गुजर के साथ में एक थूकने की बात को ब्रिज के ऊपर रात को 10 बजे के लगभग जो घटना घटी है, उसमें उसका विरोध करने के बाद में एक बदमाश प्रवृत्ति के लोगों ने आकर जिस तरह से बेल्ट, पंच और धारेदार हथियार से मारपीट की है, वो ICU में विगत 2 दिन से भर्ती है, जिसकी हालत पहले के यहाँ पे भी उसके टाँके आके लगे, हाथ पैर में लठों से भी मारा गया। तो वो एक गंभीर विषय है और सामान्य घटना को जो बदमाशों ने लगातार ऐसे उसमें ये लोग हैं उसको उसमें आरोपी नहीं बनाए। प्रशासन ने जानबूझकर राजनीतिक दबाव में या इनके लाभ सुख के चक्कर में नहीं बनाए। हम ये चाहते हैं, इनका परिवार भी आया और इन्हें अभी CSP साहब ब्रजेश जी श्रीवास्तव से मिले हैं कि हमें ये जो कार्रवाई हुई इससे खुश नहीं है, क्योंकि कार्रवाई विधिवत होना चाहिए। जिसने 7-8 जन पे महिलाओं को भी मारा कुटी करी है, बेल्टों से मारा है और धक्का मुक्की उन महिलाओं के साथ में हुई, तो ऐसे लोगों को वो उसी वार्ड में निवास करते हैं। और ये बदमाश प्रवृत्ति के 20-20 केस इनके ऊपर लगे हुए हैं, 8-8, 10-10 हर के केस लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के साथ मारपीट, ये लोग मारपीट कर रहे हैं। इनको चुनाव के टाइम 8-10 प्रकरण में, 5 प्रकरण में जिला बदर कर रहे हैं और 20-20 प्रकरण में जिला बदर नहीं कर रहे हैं, अवैध धंधे कर रहे हैं, दारू ये बेच रहे हैं। इसमें से ऐसे लोग हैं जो दारू बेचते हैं, उसकी सूचना थाने पर दी जाती है। बाकी इनकी साठगांठ वजह से इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इनके हौसले इतने बुलंद है कि ये सामान्य घटना में भी हाथ में हथियार के चलते हैं और जब चाहो चाकू छुरे मारते हैं। मैं चाहता हूं कि नागदा की पूरी जनता हमारे साथ में है और उसका हम जनता से अपील करते हैं कि 2 दिन बाद में अगर पुलिस प्रशासन ये कार्रवाई नहीं करेगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर नाइंसाफ़ी होगी और सामान्य घटना को इस तरह गुंडागिर्दी से मारपीट करेंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी पूछताछ के तौर पे किसी को लाके बिठाते हैं, यहाँ पे खातिर पानी करते हैं और वो फरियादी को ही आके चिल्लाता है और यहाँ फरियादी को अनशन बोलता है। ये थाने की हालत है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और मैं राजनीतिक लोगों से भी कहता हूँ कि यहाँ पे नागदा में बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हैं भाजपा और कांग्रेस में, इस विषय पे मौन धारण किए हुए हैं। उन पे भी हमको कहीं ना कहीं शंका होती है कि सामान्य आदमी के साथ में अगर ये घटना होती है तो उनको आगे आना चाहिए और इन पे पुलिस प्रशासन पे दबाव बना के और कार्रवाई करना चाहिए ताकि एक व्यक्ति को इंसाफ मिले और नागदा की जो सामान्य जनता है उस पर विश्वास उस पर नेताओं पे भी बना रहे और प्रशासन पे भी विश्वास कानून का बना रहे। इतना ही कहूँगा। जय श्री राम। Oh